یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے، لیکن افسوس ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج اشکیا واپس پلٹ کے بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غائب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنی میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنی تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا، بس جیسے حضرت حر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک ساتھی اللہ کے دین پہ قربان ہوتا جاتا ہے۔ حضرت عباس کے جتنے بھی بھائی تھے وہ سب امام حسین کے قدموں میں قربان ہوتے ہیں۔ جناب عباس کے بیٹے قربان ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی کمر میں لاٹھی کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جائے اور آپ میدان میں جا کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔
जनाब ओन और मोहम्मद शहीद हो जाते हैं। बस जैसे ही अजीज व अकारिब शहीद होने लगते हैं, इतने में शहजादा कासिम इमाम हुसैन की खिदमत में आके अर्ज करता है, ऐ मेरे चाचा, मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी आपके कदमों में कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, तू मेरे भाई हसन की निशानी है। बस कासिम आके अपनी माँ को बताते हैं। आपकी माँ बीबी उम्मे फरवा फरमाती है, ऐ बेटे, तुम्हारे बाबा हसन ने ये वसीयत की थी, एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया मेरे भाई हुसैन के खिलाफ हो जाएगी। उस वक्त ये तावीज जो कासिम के बाजू पे बंधा हुआ है, इसको खोलना ताकि मेरा भाई मेरे बेटे कासिम को इजाजत दे दे और मेरा बेटा कासिम मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जाए। बस शहजादा कासिम को इजाजत मिलती है। आप मैदान में जाते हैं। जैसे ही आप शेर की तरह लड़ते हैं, मगरिब का लश्कर मशरिक की तरफ, मशरिक का लश्कर मगरिब की तरफ भागता है। आप घोड़े की ज़ीं से जमीन पे आते हैं और आपका जिस्म पामाल हो जाता है। इमाम हुसैन जैसे ही अपने भतीजे की लाश पे पहुंचते हैं, तो जैसे फूलों को चुना जाता है, वैसे ही आपने अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़े हवा में जमा किए। बस जैसे ही कासिम की पामाल लाश खयाम में पहुंचती है, बीबियां रोती हैं। इतनी देर में जनाब अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला हुसैन, अब तमाम साथी शहीद हो गए हैं, मुझे इजाजत दे दें। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, तू फौज का सिपहसालार है, तुझे इजाजत कैसे दूं? जनाब अब्बास फरमाते हैं, मौला, अब इस फौज में सिवाय अकबर और आपके कोई नहीं रहा। फिर आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला, बच्चे बहुत प्यासे हैं, 3 दिन मुसलसल प्यासे रहने की वजह से अब बच्चों से प्यास बर्दाश्त नहीं होती और मुझसे उनका तड़पना देखा नहीं जाता। मुझे हुक्म दे, मैं दरिया से पानी लेके आऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, जा अपनी बहन जैनब के पास, अगर जैनब इजाजत दे दे तो फिर नहर फरात चले जाना। जनाब अब्बास बीबी जैनब से इजाजत लेके मैदान में आते हैं और शेर की तरह हमला करके दरियाए फरात तक आ पहुंचते हैं, मश्क में पानी भर के। बस वापस पलट ही रहे थे, इतनी देर में उमर बिन साद कहता है, देखते क्या हो, अगर पानी हुसैन के खयाम तक पहुंचा तो उनको मात देना बहुत मुश्किल है। अब्बास को घेर लो और दूर दूर से तीर चलाओ, वार करो ताकि अब्बास खैमे तक पानी न पहुंचा सके। बस जनाब अब्बास की यही कोशिश होती है कि चाहे कुछ भी हो, ये पानी बीबी सकीना और इमाम हुसैन के बच्चों तक पहुंचे। जालिम तीरों की बारिश करते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम छुप के जनाब अब्बास पे वार करता है कि आपका एक बाजू कलम हो जाता है। आप अलम और मश्क दूसरे बाजू में संभालते हैं। जब दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है तो आप अलम और मश्क को अपने दांतों में संभाल के तेज तेज खयाम की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा, आप पे इतनी तीरों की बारिश होती है कि आपका पूरा जिस्म तीरों से ढकने लगता है और एक तीर आपकी आंख में आ लगता है और एक तीर उस मश्क को लगता है जिसमें जनाब अब्बास ने बीबी सकीना और बच्चों के लिए पानी जमा किया था। बस जैसे ही आप देखते हैं कि मश्क से पानी बहना शुरू हो गया है, आप झुक के अपनी आंख से तीर निकालना चाहते हैं। इतनी देर में जालिम पीछे से वार करता है और आप घोड़े की ज़ीं से ज़मीन पे आते हैं और आवाज देते हैं, ऐ मेरे आका हुसैन, मेरी मदद करें। इमाम हुसैन जनाब अब्बास की लाश पे आते हैं। आप वसीयत करते हैं कि ऐ मेरे मौला, मेरी लाश को खयाम में न ले जाना, क्योंकि सुबह से लेके अब तक आपने बहुत लाशें उठाई हैं और मैं बच्चों से शर्मसार हूँ कि मैंने पानी सकीना और असगर तक नहीं पहुँचाया। बस मौला हुसैन खाली मश्क और अलम लेके खयाम में आते हैं। बच्चे दूर से जब अलम को देखें तो उन्हें लगा शायद अब्बास चाचा आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि खाली मश्क है और खून से भरा हुआ अलम इमाम हुसैन लेके आ रहे हैं और चचा इमाम हुसैन के साथ नहीं। बस बच्चे रोना शुरू करते हैं। इमाम हुसैन बच्चों को दिलासा दे के कहते हैं कि तुम्हारी प्यास को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरे नाना के दीन को बचाने के लिए ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारा प्यासा रहना जरूरी है। इतनी देर में जनाब अली अकबर फरमाते हैं, बाबा अब मुझे भी इजाजत दें। इमाम हुसैन शबी रसूल अली अकबर का माथा चूमते हैं। आप अपनी माँ और बहनों से इजाजत लेके मैदान में आते हैं और खुतबा देते हैं, ऐ लोगो देखो, मैं तुम्हारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शक्ल हूँ। मैं वो बेटा हूँ जिसको मेरे बाबा हुसैन ने दुआ मांग के अल्लाह से मांगा था कि ऐ अल्लाह,
अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे दे जो तेरे रसूल की सूरत हो। ऐ लोगो, हम आले मोहम्मद हैं, क्यों हम पे सितम कर रहे हो? हमारा रास्ता क्यों रोका है? हमें छोड़ो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। जालिम कहते हैं अकबर की बात न सुनो, इसको शहीद कर दो। तारीख ने लिखा सैकड़ों यजीद के फौज के सिपाही अली अकबर पे हमला करते हैं। देर तक आप लड़ते रहते हैं। फिर आखिर एक जालिम अली अकबर के सीने में बर्छी मारता है और हंस के ये कहता है कि अब देखते हैं कि बूढ़ा बाप इस जवान बेटे की लाश से ये बर्छी कैसे निकालता है। और ये कह के बर्छी पीछे से तोड़ देता है। बस अली अकबर घोड़े की ज़ीं से जमीन पे आते हैं और आवाज देते हैं, बाबा मेरी मदद करें। इमाम हुसैन कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं। तारीख ने लिखा जैसे कोई बच्चा अपने घुटनों के सहारे चलता है, वैसे ही आप आके अपने बेटे की लाश पे पहुंचते हैं और आवाज बुलंद करते हैं, ऐ अल्लाह मैंने इस्लाम के लिए अपना अकबर भी कुर्बान कर दिया। आप देखें कि अली अकबर का एक हाथ आपके सीने पर है। आप पूछते हैं, ऐ मेरे बेटे क्या कोई तकलीफ है? जनाब अकबर फरमाते हैं, बाबा एक जालिम ने मेरे सीने में बर्छी मारी और कहता गया, अब देखते हैं ये बूढ़ा बाप अपने बेटे के सीने से ये बर्छी कैसे निकालता है। बस इमाम हुसैन अली अकबर का हाथ सीने से हटाते हैं और एक हाथ अपना जमीन करबला पे रखते हैं, एक हाथ से बर्छी को पकड़ते हैं और कहते